So let's start the session with the market outlook for somewhat 2080. I'm sharing my screen right away. I'm showing you some previous data here. So in the last year, the Diwali was, or Morat trading was on 24th October 2022. On that day, the Nifty's closing was 17,731, and today's closing is 19,231. So exact percentage return Nifty gave is at around 8%. Same way, the Bank Nifty gave a return of around 5% in last somewhat. And mid cap 150 actually outperformed the benchmark Nifty by 25% upside growth. Same Nifty small cap, Nifty small cap 250, once again 31% growth in the last year, and Nifty 500, which is broader market index, gave a 12% return in the last year. If you see a sector-wise return, then top performer from the sector is PSU Bank, which gave 53% return in the last month. Then the second number is at Nifty Realty, who gave a 50% return. Nifty Auto gave a 25% return. Then Nifty FMCG 17% return. And then the next number is Nifty Pharma and Nifty Healthcare. Both indices gave same return of around 15%. And then Nifty Metal gave a 12% return. And after that, Nifty Media, Nifty IT, Nifty Consumer Durables, Private Bank, and Nifty Financial Services gave a one-digit number in the last somewhat. However, Nifty Oil and Gas gave a negative return of around 7% in the last somewhat. So this is you can say, a summary of last year, which sector did well and which indices did well. So now let's move on to the current market. Just now I'm sharing my screen once again. Yeah. Sorry. Let's start with Nifty 50. This is a Nifty 50 chart. Yeah. So yeah, today's closing of Nifty is 19,225. If you see from March 2020, Nifty gave a fabulous return and form a strong uptrend on a monthly chart. And last month, Nifty mark a record high at 20,222 level. From that high, Nifty actually correct in last 2 months of around 5%. And we can say in every correction, Nifty can correct till 8 to 10%. Now the immediate support zone for the Nifty would be, which is 18,460, which is its previous top, and multiple touch points level and June 2023 low. So cluster of support are there at 18,460, and below that 18,200 level, which is around 10% from top. We cannot say Nifty go there, but major support in between that 200-day exponential moving average, which is 18,830, and Nifty took a strong support last week at that point and bounced back from that level. If Nifty reaches 18,830, then probably Nifty will move towards 18,460 to 18,200 level. Otherwise, Nifty will bounce back from this level. On a higher side, immediate resistance zone for the Nifty would be 18,350 and 18,800. Sorry, 19,350 and 19,800. And if you see next month, next year horizon, then if Nifty reaches 20,222, which is its lifetime high, then Nifty will move certainly towards 22,000, which is 61.8% Fibonacci retracement level from March 2020. So it's likely to 22,000 level, and above that 23,885, 850 level. So both these target for next year, that is 22,000 and 23,850, will be on our radar. On lower side, major support zone is placed at around 18,460 and 18,200, where if Nifty goes there, then that will be a great accumulation point on the market. So we can do a accumulation that for the long term near 18,460 level. If you see a Bank Nifty, so Bank Nifty actually underperformed the benchmark Nifty, and Bank Nifty's current closing is 43,300 around. So major support for the Bank Nifty would be 42,000, and below that 40,000 will be the strong support zone for the Bank Nifty. Sorry.
On a higher side, immediate resistance placed at around 46,369, which is its recent life high. Above that, Bank Nifty will move towards 48,300 to 52,600 in coming year. As far as the Nifty Mid Cap 150, if you see the strong uptrend is going on in Nifty Mid Cap and Nifty Small Cap indices. So Nifty Mid Cap 150 is currently trading at around 14,800 mark. So sorry, Nifty Mid Cap 150 will move towards 16,500 to 17,000 level, and major support for Nifty Mid Cap would be at 14,000 mark. If you see Nifty Small Cap, here are the strong outperformance in this sector because it could not breach on closing basis on monthly chart. That previous month low it could not breach, and it sustained above that level. So Nifty Small Cap 250 is strong, is currently showing strong strength in this all indices, and immediate resistance for this is 12,600. If it breaches that level, then it will move towards 14,000 to 14,800 level. If you see a broader market, which is Nifty 500, so here we can see a consolidation phase going on since last 3 to 4 months. So Nifty 500 has a major support placed at around 16,300, now currently trading at around 17,000 level. So Nifty 500 target would be at around, if it reaches 17,700, 8 to 10% upside will be there in Nifty 500 indices. So all these indices are mostly on a strong positive momentum on a long-term basis. And if you see a sector-wise, then Nifty PSU Bank and Nifty Realty will be the hot cake in the sector counterpart. So that's it for market outlook. Now I'm handing over to Mr. Omkar Patil, who will give us a technical Diwali pick for somewhat 2080. So now I'm handing over to Mr. Omkar Patil. So thank you all. As mentioned by Vidyan sir, realty is one of the sector which many of them have been attracted, and if we'll have a look at the charts, we can clearly see that the leadership is actually present over there, and the index as a whole has outperformed the benchmark very well. So not just the index, but if we'll have a look at its component, the components has also performed pretty well. One of the major heavyweights such as DLF, be it Lodha, be it Oberoi Realty, Prestige, all of this are one of the components from the realty index who have performed really very well. So just having a look at the index of realty, from where are one of the pick belongs to. So if we'll have a look at the overall index as a whole, it is currently quoting at a multi-year levels. If we'll have a look, we are witnessing a breakout since August 2008, where the prices are currently quoting at the highest level. तो जो अगस्त 2008 का जो हाई है वो रियलिटी इंडेक्स ने अभी ब्रेक किया है. इवेंचुअली एक पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि इस सेक्टर में लीडरशिप फिलहाल प्रेजेंट है. तो पहला जो स्टॉक है इस सेक्टर का वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स. जस्ट मूविंग ऑन टू द वीकली चार्ट्स. तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल चार्ट देखोगे तो स्टॉक ने जो अपमूव दिखाया है सिंस फरवरी 2023 के बाद से, तो वो काफी अच्छा खासा एक अपमूव दिखाया है. नॉट जस्ट अपमूव, बट जहाँ जब जब मार्केट में टर्ब्यूलेंस आया है तब भी ये सेक्टर ने और ये स्टॉक ने काफी अच्छे से उस ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का जो प्रेशर है वो इस स्टॉक ने काफी अच्छे से इस फेज में उसने गुजारा है. अगर हम कंसोलिडेशन अगर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक भी बार लोअर लोज लोअर हाइस का फॉर्मेशन हमें दिखाई नहीं दिया है. तो ये एक साइन है, वन ऑफ द टेक्निकल प्राइस एक्शन साइन, कि कहाँ पर एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस आगे जाके हमें दिखाई दे सकता है. तो वन ऑफ द स्टॉक
मैक्रोटेक डेवलपर है, और ये जिस कंसोलिडेशन फेज में था उस कंसोलिडेशन फेज से भी ये अभी बाहर निकला है। तो करेंटली प्राइसेस अराउंड 848 850 लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ से भी इस स्टॉक में अराउंड एक 18 से लेके 21% के रिटर्न्स करंट लेवल्स में हमें दिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है क्रेडिट एक्सेस। सेम थिंग विद द क्रेडिट एक्सेस, अगर ये स्टॉक में भी देखा जाए तो स्टॉक ऑलरेडी एक काफी अच्छे खासे ट्रेंड में है। हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन हम क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करोगे तो जब स्टॉक ने अराउंड एक 1100 का लेवल का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से ये स्टॉक भले थोड़ा टाइम वाइज हमें इस स्टॉक में करेक्शन दिखाई दी है, बट ये टाइम वाइज जो करेक्शन थी ये भी काफी एक अच्छे खासे डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में चली गई थी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ओवरऑल उसने जो अपना ट्रेंड है हायर हाइज हायर लोज, वो काफी अच्छे खासे वे में उसने मेंटेन रखे थे। एंड वही अभी कंसोलिडेशन से ये स्टॉक भी बाहर आ रहा है, एंड इवेंचुअली ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपमूव भी दिखाई दिया है। तो एंड इनफैक्ट अक्टूबर का जो मिड वीक था उसमें भी उसने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया है, जो कि पूरे 2 हफ्तों के लिए अनफिल्ड रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से जो प्रायर अप ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो ये स्टॉक फिलहाल अराउंड 1667.60 के लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ से भी हमें इस स्टॉक में अराउंड एक 20-22% का अपमूव करंट लेवल से दिखाई दे सकता है। जो लास्ट स्टॉक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो ये जो स्टॉक है अराउंड एक टी एंड कॉफी सेगमेंट में बिलोंग करता है। ये भी उस सेक्टर में से एक लीडर है, लीडरशिप पोजीशन होल्ड करता है। अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो ये स्टॉक भी काफी अच्छे खासे अपमूव में है। जब भी इस स्टॉक में एक ट्रेंडिंग मूव आया है हमने काफी अच्छा खासा एक शार्प अप मूव देखा है। एंड जब भी ये कंसोलिडेशन में गया है ये स्टॉक ने अपना जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है। एंड इनफैक्ट जो कंसोलिडेशन था इसमें भी हमने लोअर लोज लोअर हाइस के जो फॉर्मेशन थे वो बिल्कुल भी यहाँ पर विटनेस किए नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक को भी। और एक अगर चीज नोटिस करी जाए इस स्टॉक के लिए तो अराउंड लेवल ऑफ 875 के आसपास ये इसने जब सितंबर 2021 के आसपास जब हाई क्रिएट किया था तो अराउंड 875 ये लेवल था जहाँ पे उसने स्विंग हाई क्रिएट किया था। एंड उसी लेवल को उसने एज अ रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स उसने रिस्पेक्ट किया था। एंड अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन देखोगे तो अराउंड द सेम लेवल ऑफ 875 ये लेवल के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है, जिसको हम चेंज इन पोलैरिटी भी बोलते हैं इन टेक्निकल वर्ड्स। तो ये स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है। जो कंसोलिडेशन हुआ है वो भी काफी अच्छा खासा हेल्दी कंसोलिडेशन दिख रहा है, शैलो करेक्ट शैलो कंसोलिडेशन है। एंड उसी फेज से अभी वो बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमें एक 22 से लेके 25% का अपमूव यहाँ से दिख सकता है। तो बस एक समरी देता हूँ आप लोगों को। तो ये स्टॉक्स है मैक्रोटेक डेवलपर्स जो रियल्टी सेक्टर को बिलोंग करता है। सेकंड जो है क्रेडिट एक्सेस माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। एंड लास्ट की जो टेक्निकल पिक है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है जो टी एंड कॉफी सेगमेंट में बिलोंग करता है। तो जो मैक्रोटेक डेवलपर्स के लिए जो टारगेट रखा है वो है अराउंड 1030, जो अराउंड 21% का अपमूव यहाँ से बता रहा है। जो क्रेडिट एक्सेस के लिए टारगेट है वो है अराउंड 2030, अगेन ये अराउंड 21% है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसका जो टारगेट है वो है 1150, जो यहाँ से अराउंड 25% का अपमूव
हमें बता रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी मैं मिस्टर हर्षद गाडेकर को रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर आने के लिए, एंड वो उनके फंडामेंटल आउटलुक टुवर्ड्स मार्केट एज वेल एज जो फंडामेंटल स्टॉक्स है उनके बारे में वो यहाँ पे बात करें। सो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली in advance. Thank you. Giving the market outlook and the technical picks. So technical picks होने के बाद now we are proceeding towards fundamental picks. So as we just had technical market outlook, so let's proceed with the fundamental market outlook as well. So as we all know that we had a very turbulent sessions, trading sessions from last 2-3 weeks, and that not just with India specific but globally भी हमने ये प्राइजेस के ऊपर प्रेशर देखे हैं अक्रॉस दी ग्लोबल इंडाइसेस। उसके जो मुख्य कारण थे उनमें से जो तीन, पहला लॉन्ग टर्म यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स है उनमें एक अच्छी तेजी हमने देखी, और जब भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं, तो उसका प्रेशर इक्विटीज पे जरूर आता है। सेकेंड रीजन वाज स्ट्रेंथनिंग द डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स भी जब मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट में एफआईएस के फ्लोज के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। एंड थर्ड वन इज ऑफ कोर्स द क्रूड ऑयल वोलेटिलिटी व्हिच वी फेस्ड बिकॉज ऑफ द ongoing geopolitical situations into going on into the Middle East। तो ये जो तीन मुख्य कारण थे जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में हमने अच्छा सेल ऑफ देखा। इंडियन मार्केट्स में भी हमने करेक्शन देखा है। निफ्टी ने 200 डीए में भी अपना टच किया है। सो इन सभी न्यूज के बीच में एक पॉजिटिव होप जो हमने 2-3 दिन पहले ही देखा। यूएस के फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई और उसके बाद से डाउ जोन्स, नैस्डैक और एशियन मार्केट्स में अच्छी हमने तेजी देखी। तो ये तेजी का कारण क्या था? जब मार्केट में हमने पिछली बार गिरावट देखी थी, तो द रीजन वाज वेरी सिंपल। 5.5% पे इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट हेल्ड किए गए, जो कि पिछले मीटिंग में भी हुए थे। बट इस मीटिंग में डिफरेंस ये था दैट फेडरल रिजर्व वाज, जो स्पीच थी उनकी, दैट वाज लुकिंग क्वाइट हैप्पी। सो जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन आया है इनटू द डेवलप्ड मार्केट्स, जो इन्फ्लेशन में स्टेबिलिटी एंड डिक्लाइन देखने को मिला है, तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कर्व डाउन करने में हेल्प करती है। एंड दिस अंडरस्कोर्स द सक्सेसफुल पर्पस ऑफ द सेंट्रल बैंक। सो अभी रिसेंटली आज ही शाम को पेरोल्स का भी डेटा यूएस मार्केट से आया है। तो वहां पे भी कम नए जॉब्स यूएस इकोनॉमी में देखने को मिले हैं। सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज यूएस इकोनॉमी में अभी के सिचुएशन में जॉब्स अगर कम आएंगे तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन के ऊपर उसका आने वाले समय में इम्पैक्ट होगा। एंड एनीवेज दैट विल हेल्प द इंटरेस्ट रेट टू नॉट गो हायर फ्रॉम दिस लेवल्स। तो ये इन सारी वजहों से वी सॉ a very good bounce back into the emerging markets। So लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में गिरावट आई, डॉलर इंडेक्स कमजोर होना शुरू हुआ, क्रूड ऑयल में भी हमने एक स्टेबिलिटी देखी है रिसेंट टाइम में, स्पेसिफिकली इन लास्ट 4-5 सेशंस। सो एमिड दिस थिंग्स एशियन मार्केट्स में एक अच्छा बाउंस बैक आया है, और निफ्टी भी अपने 200 डीए में से इन सारे न्यूज के बीच में एक अच्छी उछाल निफ्टी ने दी है। सो डेफिनेटली ये जो उछाल आई है, इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल बाउंस, बट इसके पीछे इकोनॉमिक रीजंस भी है। So we remain optimistic about the market outlook going ahead. We are also having elections, and whenever some volatile event comes in, so that's the one of the best opportunity for investors to capture on those opportunities. So again, we remain optimistic about the broader market. Now, after having market outlook, so let's move on towards our Diwali pick of 2023.
सो लास्ट ईयर 2022 में हमने जो 5 स्टॉक दिए थे उसमें यूपीएल, कैम्स, प्राज इंडस्ट्रीज, ग्रीन पैनल एंड एसजीएस थे। उसमें से प्राज इंडस्ट्रीज एंड एसजीएस क्लोज हो चुके हैं, बाकी जो 3 हैं वो अभी ओपन है। ये साल हमने ये 5 स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं। आई होप द स्टॉक नेम्स आर विजिबल टू ऑल ऑफ यू. So let me repeat the stock names. So first one is Dr. Reddy's Laboratories Limited. Second one is Union Bank of India. Third one is Oberoi Realty Limited. Fourth one is PI Industries. And last one is Green Lamp Industries Limited. So इनके current market prices जो estimated target price और potential upside है वो आप सभी के सामने है. So let's go one by one on these stocks and let us understand the key investment rationale, the what makes us interesting in those stocks. So let's start. So सबसे पहला जो स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्लोज टू 89,000 करोड़ है। इसका टारगेट जो है 6,163 है, जो कि 17% की अपसाइड है फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। सो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एपीआई मैन्युफैक्चरर है। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो कोई भी दवाई बनती है उसके जो की इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो ये कंपनियां बनाती है। सो जिस प्रकार से गाड़ी के टायर, गाड़ी की कुर्सियां या जो भी लाइटिंग्स है दूसरे कंपनी से आके फिर उसकी असेंबली करके गाड़ी बनाई जाती है, उसी तरह से दवाइयों में भी होता है। सो इट इज पार्ट ऑफ एन ऑटो एंसिलरी कंपनी, सॉरी फार्मास्यूटिकल एंसिलरी कंपनी। सो दे मेक्स द इंग्रेडिएंट्स. So it is one of the topmost API manufacturer in India. So the key investment rationale behind recommending Dr. Reddy's Laboratories is their strong products pipeline. So फार्मास्यूटिकल में कंपनी के पास अभी के लिए 85 नए प्रोडक्ट्स है जो आने वाले समय में कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च. Along with that FY24 में यानी रेस्ट ऑफ 2 क्वार्टर्स में 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च, एंड दिस विल हेल्प देम टू सिक्योर न्यू बिजनेस. सो strong product pipeline is going to steer the growth of Dr. Reddy's for next 4 to 5 years. Then secondly, they have backward integrated manufacturing facilities. So backward integration यानी क्या होता है? So you procure your raw material from your facility itself. यानी आपका आपका क्लोथ बनाने का बिजनेस है तो you will backward integrate. So you will have your yarn business, you will have your cloth business. So इस तरह से वो backward integrated facilities बनती है. So Dr. Reddy's is looking to backward integrate 70% of their molecules in next 4 to 5 years. तो यह आने वाले 4 से 5 साल में 70% इनके जो प्रोडक्ट्स है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट किए जाएंगे, यानी इनकी प्रोक्योरमेंट डॉक्टर के थ्रू ही की जाएगी, डॉक्टर रेड्डीज के बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट से ही की जाएगी. तो इसका बेनिफिट क्या होता है? अगर मैं बाहर से प्रोक्योर करता हूं तो आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माय सम मार्जिन्स, बट एज आई बैकवर्ड इंटीग्रेट ऑल माय फैसिलिटीज, मोस्ट ऑफ माय फैसिलिटीज, देन डेफिनेटली that's the kind of benefit I am going to receive. And third one is their rebound into the US sales. So USA से कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू आता है. USA मार्केट में रिसेंटली हमने अच्छी ग्रोथ देखी है इन फार्मास्यूटिकल कंजम्पशन, and again this is a good hope for all the pharmaceutical companies. If you look at Sun Pharma or Cipla's result, they are also reported a very good second quarter. So Dr. Reddy's Laboratories, we are giving a buy on the recent closing with a target price of 6,163 rupees. सेकेंड स्टॉक जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन 78,000 करोड़ है. ये पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है. सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिकमेंड करने का जो प्राइम रीजन हमारा रहा है, इट्स देयर रिकवरी टारगेट. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, इसका जो करंट मार्केट प्राइस 105 है और इसका टारगेट प्राइस
137 है, जो कि 31% की अपसाइड पोटेंशियल रखता है. सो कमिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट रैशनल, सो एज वी ऑल नो दैट पिछले 7-8 साल में पीएसयू बैंक्स के साथ जो घटनाएं घटी है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट पे काफी इम्पैक्ट इनके आया है नेगेटिवली. बट पिछले 2 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आरबीआई ने जो नॉर्म्स स्ट्रिक्ट किए हैं, तो companies are also aggressively cleaning their balance sheet. And coming towards the Union Bank of target for the recovery, so FY24 में 16,000 करोड़ का गाइडेंस है बैंक का रिकवर करने का. एंड जो सेकेंड हाफ है, यानी हाफ टू ऑफ दिस FY24, आने वाले 2 क्वार्टर में क्लोज टू 9,000 करोड़ की रिकवरी करने का टारगेट बैंक के एमडी द्वारा सेट किया गया है. तो बैंक्स का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, उसमें प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद जो बैड लोन्स है उनके लिए प्रोविजन की जाती है, और उसके बाद बैंक प्रॉफिट रिपोर्ट करती है. तो जब आप वो जो प्रोविजंस की हुए लोन्स है उनसे आप रिकवरी करते हो, तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. सो ये रिकवरी इज गोइंग टू हेल्प द बैंक टू accelerate their profits. Secondly, as we just discussed, they are cleaning on their balance sheet. For FY23, they had a revenue target of again 16,000 crores, but they actually recovered more than that. So they recovered 20,000 crores. So this underscores their genuine interest in recovering those bad loans and their aggression towards these things. So again, this recovery is very healthy. And recent business performance traction यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बाकी सारे पीएसयू बैंक्स का भी काफी अच्छा रहा है. सो हिस्टोरिकली प्राइवेट बैंक्स के और पीएसयू बैंक्स के परफॉर्मेंस में अच्छा खासा डिफरेंस आता था, बट अभी के माहौल में पीएसयू बैंक्स आर आल्सो कॉम्पिटिंग इन अ गुड वे विद प्राइवेट बैंक्स in terms of their business performance. So that reflected in their second quarter's results. So their loan book saw 10% growth on YY basis, and quarter on quarter it improved by 4.3%. So deposits also improved by 9% on year on year basis. This is just a summary that signifies the importance of their business traction. So तीन फैक्टर्स, एक बैलेंस शीट क्लीन हो रही है, सेकंड हाफ में ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स इज गोइंग टू वेरी गुड, एंड थर्ड वन बिजनेस परफॉर्मेंस इज आल्सो हेल्दी. और बैंक जो है लेस देन 1 प्राइस टू बुक ट्रेड कर रहा है. नॉट जस्ट दिस बैंक, ऑलमोस्ट ऑल PSU बैंक्स आर ट्रेडिंग एट लेस देन 1 प्राइस टू बुक. मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिंग लेस देन प्राइस टू बुक. सो फॉरवर्ड प्राइस टू बुक इस बैंक का जो आता है that is close to 0.7 times. So if you value this even with 0.85 times, so we arrive at target price of 137 rupees. So that implies 31% upside in Union Bank of India. So I hope the investment rationale of Union Bank of India is clear to all of you. थर्ड हमारा जो स्टॉक है ये ओबेरॉय रियल्टी है. सो ओबेरॉय रियल्टी मुंबई स्थित एक वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी है. तो अभी के सिचुएशन में आप रियल एस्टेट की ग्रोथ देखोगे तो उसमें के शेप की ग्रोथ आ रही है, यानी जो अफोर्डेबल जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, यानी जो रिलेटिवली इकोनॉमिकल प्राइसेस जिन हाउस के होते हैं उनमें स्टेबिलिटी और डीग्रोथ देखी गई है. वही अगर हम प्रीमियम सेगमेंट में जाएं जहाँ पे लग्जरियस हाउस की सेलिंग होती है, वहां पे हमने अच्छी खासी ग्रोथ देखी है. इनफैक्ट डीएलएफ के भी काफी सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं. सो लिस्टेड स्पेस में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के ज्यादा प्लेयर्स नहीं है, बट जो प्रीमियम प्लेयर्स है जैसे ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, सोबा डेवलपर्स, DLF, all these are premium play companies. So they are so basically we are getting a chance to participate in those upside rallies. So Oberoi Realty, if you look at in last few months, DLF, Godrej Properties में अच्छी उछाल आई है, but Oberoi Realty पिछले 2 साल से sideways है, इसमें movement नहीं आई. The large reason for this was their lack of projects, so that was the market concern. But
उस मार्केट कंसर्न को एड्रेस करने के लिए अभी कंपनी दो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है दैट विल बी बेस्ड इनटू ठाणे वन इज इनटू द पोखरण एंड अनदर वन इज इन होलसेल। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स आफ्टर दिवाली लॉन्च किए जाएंगे एंड दे विल बी लॉन्च्ड बिफोर एंडिंग ऑफ FY24। सो जो ग्रोथ मोमेंटम अभी प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में चालू है उसका अच्छे से फायदा इस कंपनी को यहाँ पे मिल सकता है। अलॉन्ग विथ दिस टू न्यू प्रोजेक्ट 17,000 करोड़ के अनसोल्ड इन्वेंट्री भी ओबेरॉय रियल्टी के पास है। सो बेसिकली दिस पुट्स देम इनटू अ स्वीट स्पॉट टू कैप्चर द ग्रोथ इनटू द MMR हाउसिंग डिमांड। So we are also recommending buy on Oberoi Realty with a target price of 1,476 rupees, जो कि करंट क्लोजिंग से 20% की अपसाइड जताता है। देन जो फोर्थ स्टॉक है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अवर फोर्थ दिवाली पिक। क्लोज टू 51,000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। केमिकल में भी ये स्पेसिफिकली एग्रोकेमिकल स्पेस में काम करते हैं। सो the key investment rationale to recommend PI Industries is their stable margins. So because of the global slowdown, chemical sector में prices erosion हो रहे हैं, जिसके चलते जो टॉप लाइन है उसके ऊपर कंपनीज का इम्पैक्ट, कंपनीज के टॉप लाइन के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। बट PI इंडस्ट्रीज के केस में डिफरेंट सिचुएशन है बिकॉज दे ऑपरेट विद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सो उनका जो प्राइसिंग होता है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है एंड इन दिस वे they are actually saving themselves from the recent turbulence. So they have stable margins and chemical cycle is on the cusp of turnaround. So we can see turnaround in the chemical space in 1 or 2 quarters. So whenever cycle gets turned around, there is a lot of new demand comes through, and to cater that demand, they PI Industries have 40 new products in the pipeline that are into the various development stage. So PI Industries is our fourth दिवाली पिक एंड इसका टारगेट प्राइस जो है ये 4,013 रुपया है, जो कि रिसेंट क्लोजिंग से 15% की अपसाइड है। And last we have fifth stock Greenlam Industries Limited. So Greenlam Industries Limited small cap कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लोज टू 6,600 करोड़ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। Greenlam Industries एक्चुअली जो फर्नीचर के लैमिनेशंस होते हैं, लैमिनेट्स होते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। कंपनी का मार्केट में अच्छा ब्रांड है एंड दे डू कैटर टू they do have tie-ups with the builders and various housing projects जो हाउस होते हैं, जो इंटीरियर के साथ बिकते हैं, उनके साथ भी कंपनी के अच्छे टाइप्स है। सो जो हमारा थॉट प्रोसेस है विद द रियल इस्टेट सेक्टर रिगार्डिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर स्पेसिफिकली इनटू द प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस, तो उसी इकोसिस्टम से बेनिफिट ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज को मिल सकता है। सो अभी के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में जो ग्रोथ है ये प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में है, जिन घरों के दाम ज्यादा होते हैं, लग्जरियस हाउस होते हैं, और उस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंटीरियर्स पे भी अच्छा खासा स्पेंड करते हैं। सो हाउसिंग ग्रोथ के साथ इंटीरियर भी आता है एंड ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लैमिनेशंस बनाती है। सो दिस प्लेस कंपनी इन अ गुड पोजीशन टू कैप्चर द ग्रोथ। सो डिमांड आउटलुक जो है आने वाले क्वार्टर्स में ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज का इज वेरी गुड एंड कंपनी इज आल्सो डूइंग अ वेरी गुड एक्सपोर्ट। सो they are also coming with 825 crores of capital expenditure plan and this has a revenue potential of 1100 crores, जो कि अभी के FY23 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के 50% है। So with this tailwinds for the Greenlam Industries, we are recommending buy on the Greenlam and इसका जो टारगेट प्राइस है ये 635 रुपया है, जो कि 15% की अपसाइड जताता है फ्रॉम द रिसेंट क्लोजिंग। सो वी हैव एंडेड विद आवर ऑल 5 स्टॉक्स। टू समराइज ऑल द स्टॉक, मैं पांचों भी स्टॉक्स और उनके टारगेट प्राइसेस रिपीट करता हूं। तो पहले स्टॉक्स का नाम मैं रिपीट करता हूं। फर्स्ट वन इज डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज, सेकंड वन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड,
चौथा पीआई इंडस्ट्रीज एंड पांचवा ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज। इन सारे के टारगेट प्राइसेस जो है डॉक्टर रेड्डीज का 6163, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 137 रुपीज, ओबेरॉय रियल्टी का टारगेट प्राइस है 1476 रुपीज, पीआई इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस है 4013 रुपीज एंड लास्टली ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस है 635 rupees. So I hope all this investment rational, the thought process behind this stock and the market outlook is clear to all of you.